In that preposition we see the time, place. Okay. Okay. Next joining words we have to see in that video. Okay. So first we see the preposition in that time. So what we have to see the first, we use on and in for times of the day or a day of the week or time of the year. तो सबसे पहले बच्चों आपको कहना है जो आपका ग्रामर पैथोलॉजी बुक है और टेक्स्ट बुक आपको क्या है निकालना है. So you have to open your grammar पैथोलॉजी textbook and notebook also. In that grammar पैथोलॉजी textbook page number 53. In that page number 53 we have to see the picture. There are three pictures are there. In that three pictures we have to see at, on and in. We have to see at, on and in. So at or on or in कब यूज करते हो हम यहाँ पे देखते हैं. So I go to sleep early at night. At night. Next, the football match is on a Tuesday. We pick fruit in the summer. तो बच्चों ये जो पिक्चर्स है इस पिक्चर्स में आपको बताया गया है कि एट, ऑन और इन कब कब यूज करते हैं. एट का मतलब क्या होता है जब क्लॉक का मतलब होता है 11 बजे 12 बजे, हाँ 1 दोपहर, हाँ 3 बजे 4 बजे. दैट टाइम वी फर्स्ट यूज दैट at o'clock, at a night, at a day. So that time we use at why we use there is a clock, we have to say that at. Next on का मतलब होता है अगला दिन, जैसे कि Tuesday, tomorrow, on Tuesday, on Wednesday we have to see. In का मतलब होता है अंदर, जैसे कि we pick fruit in the basket, the party in the evening. So that's like words we have to use here. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है ये जो एट, ऑन और इन होता है हमें क्या करना है यूज करते हैं. सो वी सी द फर्स्ट वन सेंटेंस. द फिल्म स्टार्स. द फिल्म स्टार्ट्स. द फिल्म स्टार्ट्स dot 5 o'clock. Dot 5 o'clock. So at and in. तो हमें क्या करना है ये जो वर्ड्स है ये जो कंजक्शन सॉरी प्रीपोजिशन से ये प्रीपोजिशन हमें क्या करना है यहाँ पे यूज करना है. तो द फिल्म स्टार्ट्स dot 5 o'clock. जब कभी भी क्लॉक आ जाता है दैट टाइम वी यूज द एट. दैट टाइम वी यूज एट. इन का इस्तेमाल करेंगे अंदर की चीज हो अगर उसमें रखी हो दैट टाइम वी यूज इन. ओके. सो वी आर व्हाट वी यूज हियर क्लॉक है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे एट ऑफ 5 o'clock. At 5 o'clock. So we use at. We use here at. Okay. So what? The film starts at 5 o'clock. So what we use here at. And we use here. Next sentence. I do my homework dot the evening. Second one. I do my homework dot evening. So by or in. So which one preposition we have to use here? I do my homework in the evening. मैं मेरा homework शाम को करता हूँ. In the evening. Next, the party is dot Thursday. जैसे कि हमने पहले सेंटेंस में देखा था फुटबॉल मैच इज ऑन अ ट्यूसडे. कल परसों तरसों तो हम क्या यूज करते हैं ऑन. क्या यूज करते हैं ऑन. So which one we use here on Thursday.
The party is on Thursday. So student, we have to write it all sentences. Okay. So that's sentence for the 5. The film starts at 5 o'clock. Next, I do my homework in the evening. Third one, the party is on a Thursday. In the preposition on or to, we use on the Thursday. Next, fourth one, it is a very hot. It is a very hot in a summer. It is a very hot in, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? in a summer. हमें कब गर्मी लगती है? समर में गर्मी में हमें क्या लगती है? गर्मी. गर्म हम कब होते हैं? गर्मी में, जब समर सीजन शुरू होता है. तो बच्चों इसी तरह से हमें क्या करना है, ये जो प्रीपोजिशन से एट, इन और ऑन, यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से यूज करना है. जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स है, इन पिक्चर्स में हमें बताया गया है एट कब यूज करना है, ऑन कब यूज करना है और इन कब यूज करना है. इन का मतलब है अंदर, जैसे ऑन का मतलब है परसों तरसों, हाँ, तब हम क्या यूज करेंगे? ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, दैट टाइम वी यूज द ऑन. Okay, so next we see fifth one sentence. Our holidays are July. So which one word we have to use here? Which one preposition we have to use? So that first we have to pause the video and complete it, and after that we have to write next. Okay, so I have to pause the video and rotate. So I will rub that blank. तो बच्चों आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करना है और क्या करना है? आपको जैसे वैसे आपको क्या करना है? लिख के लेना है. Okay. Our holidays are July. Our fifth one. Our holidays are July. So in or after. Our holidays are after or July. So that question you have to rotate. I will give you 4 questions. This 4 questions you have to complete it. Okay. So next one, sixth one. The play starts. The play starts. .6 o'clock. 2 or okay, so these 2 sentences you have to solve these 2 sentences. Okay, that first sentence, our holidays are July, in or after. Which one preposition is correct? That preposition you have to write here. Next, the play starts 6 o'clock. So 2 or at, which one is the preposition correct? This preposition you have to rotate here. Okay, so all of the students understood what we learned today. Today we are going to learn about preposition. In that preposition we see the time. In that time place we have to see on, in or at. On, in or at. So next one we see in that preposition a place. In that place we have to use. In that chapter number 32. In that chapter number 32 we see the place. We see the place. Okay. In that place, which prepositions we have to use here? Under, between, behind, in front of, on, and near are prepositions. They tell us where something. So for example, I will write here that first you have to pause the video and rotate all the sentences. And you have to complete. This is your homework. You have to complete in your home. Okay.
हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट पेज निकालो. इन दैट नेक्स्ट पेज वी सी द चैप्टर नंबर 32. In that chapter number 32 we see the preposition. In that preposition we see under. Under का मतलब नीचे, between दोनों के बीच, behind पीठ पीछे, in front of आपके सामने, off on. on का मतलब ऊपर, near मतलब नजदीक. Are preposition they tell us where something or someone is. तो इसका मतलब क्या रहता है, जैसे कि अंडर. अंडर का मतलब होता है छत के नीचे, बिटवीन हम दोनों के बीच में, जैसे कि ये वीडियो और मैं, इसके बीच में क्या है, ये टेक्स्ट बुक है. नेक्स्ट बिहाइंड, पीछे. बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे. नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ इस मोबाइल के सामने, जैसे इन फ्रंट ऑफ मोबाइल. हाँ. नेक्स्ट ऑन. ऑन का मतलब जैसे कि इस ऑन द textbook, on the textbook, on that duster. So like that sentence, like that preposition we have to use. Near. Near का मतलब होता है नजदीक. So that's like preposition we have to use here. For example, in that first there are some pictures are there. In that pictures is we have to see. Okay? तो पहले पिक्चर में क्या दिया है, यहाँ पे एक पिलो. इस पिलो के नीचे कौन है, एक बिल्ली है. तो क्या है, अंडर द पिलो. अंडर द पिलो का मतलब है पिलो के नीचे. नेक्स्ट बिटवीन द गर्ल्स. इन दो गर्ल के बीच में क्या है, एक बिल्ली है. तो हमने क्या यूज किया है, बिटवीन. जैसे कि मैंने बताया, मोबाइल और मेरे पीछे क्या है, टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट बिहाइंड द कर्टेन. इसके मतलब है जो विंडो का कर्टेन होता है उसके बिहाइंड, उसके पीछे क्या है, एक बिल्ली है. नेक्स्ट नियर द फायर. जो आग है, आग. आग के नजदीक कौन बैठी है, ये बिल्ली बैठी है. इन फ्रंट ऑफ इट्स मदर. माँ के सामने वो बिल्ली क्या करे, ऐसे ऐसे घुल मिल रही है. ऑन द वॉल. ऑन द वॉल का मतलब क्या है, वॉल के ऊपर. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस in, on, between, behind, in front of and near. Okay students, so we see the first one. The jam is dot dot the jar. The jam in the jar. तो jam कहाँ पे है, jar में. तो हम क्या यूज करेंगे, the jam in the jar. Next the tiger is dot dot the tree. The tiger is behind the tree. The tiger is behind the tree. वो पेड़ के पीछे क्या है, टाइगर छुपकर बैठा है. नेक्स्ट the ball is the dot dot the boy. वो बॉल कहाँ पे, वो दो बच्चों के बीच में क्या है, वहाँ पे बॉल है. तो which one word we use, दोनों के बीच में होगा तो हम क्या यूज करेंगे, between. दोनों के बीच में होगा तो हम क्या यूज करेंगे, between. अगर पेड़ के पीछे है तो हम क्या यूज करेंगे, behind. So that prepositions we have to use in our daily language. In the daily language we have to use that word behind. Okay. इन द बिटवीन. बिटवीन मतलब क्या होता है, इसके बीच, इसके और मेरे बीच में ये रहता है. सर दिस इज इन द बिटवीन द वी बॉल. हाँ, सो लाइक दैट सेंटेंस. द बॉल इज बिटवीन द बॉय. द बॉय इज डॉट डॉट द कंप्यूटर. द बॉय इज नियर द कंप्यूटर. काउंटर के नजदीक बैठा है. द बुक्स आर डॉट डॉट द वेस. द बुक्स are in front of the vase. The squirrel is dot dot the roof. The squirrel is on the roof. So student, here we complete our chapter number 31 and chapter number 32. In that chapter number 31 we see the preposition time, and in that chapter number 32 we see the preposition place. तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, नियर, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, ये जो वर्ड्स है वो वर्ड्स में यहाँ पे आपको लिख के दूंगा. ये वर्ड्स आपको क्या करना है, रीड करना है. ये वर्ड्स आपको 5 बार लिखनी है. तो कौन से प्रीपोजिशन से, तो अंडर. अंडर का मतलब होता है नीचे. UNDR. अंडर. अंडर का मतलब होता है नीचे. बिटवीन. बिटवीन का मतलब होता है हम दोनों के बीच में. बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छुपना. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है हमारे सामने, आगे. और नेक्स्ट ऑन. ऑन का मतलब होता है ऊपर. और नियर. नियर का मतलब होता है
कौन से प्रीपोजिशन देखे हमने? एट और ओवर स्विच में, सिर्फ एट मींस में और एट, ये प्रीपोजिशन हमने कहाँ पे देखे? इन द फर्स्ट टाइम में हमने क्या देखे? ये प्रीपोजिशंस देखे. Okay, so here we are, so student, here we have to write this all the words. Okay, so under, between, behind, in front of, on, near and at. So all those words you have to write it down in your notebook and you have to write down these words 5 times. That is the prepositions are there, but our general knowledge that you have to rotate all the words. Okay, so one word you have to rotate 5 times. तो बच्चों आपको क्या करना है? होमवर्क में आपको मैंने बताया तो वो होमवर्क आपको क्या करना है? पूरा करना है. ओके, चैप्टर नंबर 33, conjunction joining words. In that conjunction joining words we see the three conjunction. First and, but and or. The conjunction and, but, and third one is or. These three conjunction we are studying. Okay, so all of you students open your grammar textbook page number 55. So all of you open your textbook, grammar textbook page number 55 and listen carefully. In the first we have to see, we use and, but and or to join words or sentences. They are called as joining words or conjunctions. तो बच्चों इसका मतलब क्या है? जॉइनिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि एंड क्या करता है? दो वाक्यों को, मतलब उसको सेंटेंस हम कहते हैं. क्या कहते हैं हम? सेंटेंस को क्या करता है? वो मिलाता है. जैसे कि आई लाइक मैंगो फॉर एग्जांपल. ओके, हम पहले देखते हैं एंड. हाँ, फर्स्ट वन, आई लाइक मैंगो. आई लाइक मैंगो, मुझे आम बहुत पसंद है. नेक्स्ट, आई लाइक एप्पल. हाँ, so there are two sentences are there. First one क्या है? I like mango, I like apple. There are two sentences. ये दो सेंटेंस को क्या करता है? ये जो and, A-N-D, and क्या करता है? मिलाता है. तो हम कैसे मिलाएंगे? तो ये देखो, I like mango and apple. तो इसमें क्या हुआ? I like mango and apple. तो इसमें क्या किया? दो सेंटेंस को क्या किया? मिला दिया. तो हमने ये क्या निकाला? I like. ये क्या करके हमने एक ही बार यूज किया और इसकी ये निकाल के हमने यहाँ पे क्या यूज किया? And यूज किया. तो हमारा सेंटेंस को क्या हो गया? I like mango and apple. So that's first one and we have to use here. Okay. So the conjunction and is really useful for joining two sentences. ये and हम कब यूज करते हैं? जब हम दो सेंटेंस को मिलाते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? And. For example, जैसे कि table and chair. Next, bat and ball. Bat and ball. So like that sentences. For example, table and chair. Those are the related words are there. Those are the related words. Bat and ball. Those are the related words. जैसे कि मैंगो और एप्पल के फ्रूट्स है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं. That time we have to use here and. तब हम क्या यूज करते हैं बच्चों? And यूज करते हैं. समझ में आ गया बच्चों? हम and यूज करते हैं. And कब यूज करते हैं? जब दो सेंटेंस को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? And यूज करते हैं. Okay. So next we see the but. तो but हम कब यूज करते हैं? There are two things are there that can be used but. कुछ चीजें होती है, उन चीजों को मिलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? but यूज करते हैं. तो बच्चों उससे पहले क्या करना है? आपकी नोटबुक निकालना है और आपकी नोटबुक में आपको क्या करना है? ये वीडियो पॉज करके आपको क्या लिखना है? एग्जांपल, आई लाइक मैंगो और नेक्स्ट है आई लाइक एप्पल. तो इन दोनों से ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस को हमने कैसे मिलाया? आई लाइक मैंगो एंड एप्पल.
तो ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, ये लिखना है टेबल एंड चेयर, बट sorry bat and ball. So that's like sentences, those are the example you have to write it. Okay, तो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है सेंटेंस आपको क्या करना है, लिख के लेना है. Okay, so next we see the second one, bird. हमने अभी क्या देखा, एंड में हमने क्या सीखा, एंड में हमने सीखा कि दो सेंटेंस को हम किससे मिलाते हैं, एंड से मिलाते हैं. अब बट का मतलब क्या होता है, द कंजंक्शन बट इज यूज्ड टू शो द अपोजिट और conflicting ideas. What follows but is often something that is unaccepted or something different. जो different होता है, opposite होता है, that time we have to use here but. फॉर एग्जाम्पल, हाँ तो बट हम कब यूज करते हैं, हम एग्जाम्पल में देखते हैं, तो आपको क्या बहुत ही आसान हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट वन, द आइसक्रीम इज कोल्ड. द आइसक्रीम इज कोल्ड. एंड सेकेंड वन, this is the first one, this is the second one. Second one is the tea is hot. The tea is hot. तो उसमें क्या आता है, कोल्ड और हॉट. ये क्या है, अपोजिट है. क्या है, अपोजिट. द आइसक्रीम इज कोल्ड, द टी इज हॉट. तो हमें इसमें क्या यूज करना है, बट. यहाँ पे क्या है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर, टू डिफरेंट थिंग. डिफरेंट का मतलब क्या है, ये क्या है, आइसक्रीम है, और ये क्या है, टी है. दोनों चीजें क्या है, अलग अलग दोनों चीजें, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बट. द आइसक्रीम एक चीज हो गई और टी एक चीज हुई, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट है. आइसक्रीम कैसा होता है, कोल्ड होता है, और टी कैसा होता है, हॉट होता है, यानी कि गर्म होता है, और ये क्या होता है, ठंडा होता है. तो ये दोनों चीजें होती है, वो क्या होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, लेकिन वो इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं, डिफरेंट थिंग्स आर there. So that's why we have to use here but. So what's our sentence here, the ice cream is cold. Sentence, the ice cream is colder but the ice cream is colder but the tea is hot. But the tea is hot. हाँ, तो इस तरह से सेंटेंस हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखने. तो बच्चों आपको समझ में आया बट हम कब यूज करते हैं, बट द आइसक्रीम इज कोल्ड एंड नेक्स्ट द टी इज हॉट. देयर आर टू सेंटेंसेस आर एंड दैट टू सेंटेंसेस दे आर डिफरेंट. व्हाट डिफरेंट, दिस इज द आइसक्रीम एंड दिस इज द ट्री. हाँ, and then there is the opposite words, cold and hot, that is the opposite word. और चीजें डिफरेंट चीजें क्या क्या है, यहाँ पे आइसक्रीम एक है और टी एक है. तो यहाँ पे क्या है, चीजें दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है. और ये चीजों में हमने क्या देखा, यहाँ पे कोल्ड और हॉट, ठंडा और गर्म, ये क्या है, अपोजिट वर्ड्स है. तो ये जो हमें सेंटेंस हमने देखा कि जैसे कि द कंजंक्शन बट इज यूज्ड टू शो अपोजिट to conflicting ideas and what follows but is often something that is unaccepted or something different. तो ये सब कुछ हमने इसमें देखा. तो बच्चों आपको समझ में आ गया कैसे करना है सेंटेंसेस. तो इसमें हमने अभी क्या देखा, एंड बट. तो इसी तरह से आपको कहना है, वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करके आपको ये जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं, लिख के लेने. ओके, so next last one we have to see or, that is the or. Okay, so we see this or. So all of you wrote it that sentences. Okay, very good. तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंसेस आपको क्या करना है, लिख के लेना है. ओके, okay, we see the last one, like. और तो और का मतलब क्या होता है, so would you like tea.
first sentence, would you like tea? Next, would you like coffee? Would you like coffee? हाँ, तो वुड यू लाइक टी और कॉफी? तो आपको कॉफी पसंद है और टी पसंद है। तो पहले प्रश्न क्या पूछा है, वुड यू लाइक टी, आपको टी चाहिए। नेक्स्ट, वुड यू लाइक कॉफी, आपको कॉफी चाहिए। तो ये दोनों सेंटेंस आपको क्या करना है, मिक्सचर, वी हैव टू जॉइन दिस सेंटेंसेस। तो हम जॉइन कैसे करेंगे, तो वी हैव टू यूज और, वी हैव टू यूज और। तो और कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो सेंटेंस है ये एक सेंटेंस हमें निकालना है, उसकी जगह हमें क्या यूज करना है, और यूज करना है। सो और का मतलब क्या होता है, द कंजंक्शन और इज यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटीज और टू इंडिकेट दैट देयर इज अ चॉइस टू मेक। चॉइस का मतलब क्या होता है, आपको ये चाहिए या ये चाहिए, जैसे कि बैटबॉल चाहिए या फुटबॉल चाहिए। हाँ, सो दैट्स लाइक चॉइसेस आर देयर, दैट चॉइस वी हैव टू चूज। जैसे कि आपको बता देते हैं कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए, पहले बैट चाहिए या फुटबॉल चाहिए। हाँ, तो पिक्चर देखना है या गाने के लिए जाना है, डांस करना है या गाना गाना है। हाँ, तो देयर आर टू चॉइसेस आर देयर, इन दैट टू चॉइसेस वी हैव टू चूज वन। ओके, सो दैट टाइम वी हैव टू यूज और। तो बच्चों आपको क्या देते हैं, दो चीजें देती है, दो चीजें आपको वहां पे दिखाई देती है, तो उन दो चीजों में से आपको क्या करनी है, एक पसंद करनी है। हाँ, जैसे कि आपके हीरे की आंटी और यहाँ पे चांदी की, सोने की आंटी, तो दोनों में से कौन सी चाहिए, वुड यू लाइक टू गोल्डन रिंग और डायमंड रिंग। हाँ, so there are two things are there and that time you have to choose one, so that time you use or। तो हम और कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो, would you like tea, would you like coffee? So see here sentence, would you like tea or coffee? तो आपको क्या चाहिए, टी चाहिए या कॉफी चाहिए, तो दैट टाइम यू यूज और। तो बच्चों आपको समझ में आया कैसे यूज करना है टी और कॉफी। तो हमने यहाँ पे देंगे, यहाँ पे दो चीजें थी, उसमें से हमें क्या करनी है, एक चीज क्या करनी है, बराबर से क्या करनी है, चूज करनी है। तो दैट्स लाइक वी हैव टू सी दैट कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स एंड बट एंड और। तो एंड हम कब यूज करते हैं, देयर आर टू सेंटेंसेस आर देयर, दैट टाइम वी यूज आर, सॉरी एंड हम कब यूज करते हैं, दो वाक्यों को मिलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड। बट हम कब यूज करते हैं, देयर आर टू अपोजिट वर्ड, जैसे कि हम मराठी में कहेंगे विरुद्धार्थी शब्द, उस बट में क्या होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, और बट में क्या होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, तो दैट टाइम यू यूज द बट। और में क्या होता है, और में कहते हैं देयर आर टू थिंग्स आर देयर एंड दैट टू थिंग्स वी हैव टू चूज वन। तो आपको बताते हैं ये चाहिए या वो चाहिए, तो उसमें से आपको क्या करना है, एक सिलेक्ट करना है। तो चॉइस जब होती है आती है, तब हमें क्या यूज करना है, और यूज करना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, तो हमें आज क्या करना है, एंड बट और वी हैव टू यूज हियर। माय फादर इज अ डॉक्टर एंड ही वर्क्स हॉस्पिटल। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, माय फादर इज अ डॉक्टर एंड ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। तो उसके फादर के डॉक्टर है, और वो काम कहाँ पे करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, एंड आएगा, बट और। सो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर, फादर। हाँ, तो यहाँ टू सेंटेंस, माय फादर इज अ डॉक्टर एंड नेक्स्ट ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आएगा, और आएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देयर आर टू सेंटेंसेस, so we have to use here. So my father is a doctor and he works in a hospital. Next, Delna read the books and she liked it very much. Delna read the books but she liked it very much. Delna को क्या बुक्स पसंद है, and she liked it very much. वो उसको क्या बहुत ही
शी रीड बुक्स, उसको बुक रीड करना क्या है पसंद है, एंड शी लाइक इट वेरी मच, वो उसको क्या कहता है बहुत ही अच्छे लगते हैं. यू कैन हैव राइस और नूडल्स. देयर आर टू चॉइस, राइस एंड नूडल्स. जैसे कि टू चॉइस मैंने अभी बताया था. यू कैन हैव, so all of the students pause the video and rotate this. Okay, अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, यू कैन हैव राइस, यू कैन हैव राइस डॉट डॉट राइस एंड डॉट डॉट नूडल्स. यहाँ पे कितनी चीजें, दो चीजें, क्या है राइस और नूडल्स. तो आपको कहना है एक ही लेंगे, तो यू कैन हैव राइस और नूडल्स. तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे और. हाँ, वैसे नेक्स्ट, आर दिस ग्रेप्स सोअर बट स्वीट. सोअर ये क्या है अपोजिट वर्ड्स आर यूजिंग देयर, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज देयर but. So are these grapes but sweets? I speak English but I don't speak Spanish. हाँ, मुझे इंग्लिश आती है पर मुझे स्पेनिश नहीं आती. तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे but. I speak English but I don't speak Spanish. Mr. Sanders went to visit Sanjay and Sanjay dot dot he was not at home. Mr. Sanders went to visit Sanjay and he was not at home. There are two sentences that time you use and. Next, I had fish or rice for a lunch. We can go to Oxford by bus or train. हाँ, तो इसी तरह से बच्चों हमें क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल से पेज नंबर 55 एंड पेज नंबर 56. तो 56 पे क्या दिया है, जॉइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग कंजंक्शन. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन सेंटेंस इज गिवन हियर. सो क्या दिया है यहाँ पे हम देखते हैं. हाँ, पेज नंबर 56 पे क्या दिया है, मैरी बॉट अ रूलर. मैरी bought a ruler. Next, one second. Mary bought a pencil. Mary bought a pencil. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, there are two sentences. क्या है, Mary bought a ruler. मैरी को क्या मिल गया, रूलर मिल गया. और क्या मिल गया, मैरी बॉट अ पेंसिल. और क्या मिल गया, मैरी को पेंसिल. तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, तो मैरी bought a ruler and pencil. So हम यहाँ पे क्या यूज किया, and. So next one, he is rich and he is unhappy. हाँ, वो क्या है, rich है और क्या है, unhappy. He is rich but he is rich and he is unhappy. So next, Vicky sells balloon, Vicky sells toy. तो यहाँ पे कौन सा है, Vicky sells balloon. This is the second one. Vicky sells balloon. Balloons. And Vicky sells toys. Vicky sells toys. कितने सेंटेंस है अभी बच्चों, दो सेंटेंस. क्या है, विकी सेल्स बलून्स, विकी सेल्स टॉय.
तो हमें क्या करना है, इन दो सेंटेंस को हमें क्या करना है यहाँ पे मिलाना। तो कैसे मिलाएंगे, विकी सेल्स balloons and dolls. अब सेकंड थर्ड वन सी, वुड यू लाइक टू वॉक, वुड यू लाइक टू रन। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वुड यू लाइक टू वॉक बट सॉरी वुड यू लाइक टू वॉक और रन। तो यहाँ पे वुड यू लाइक टू वॉक एंड वुड यू लाइक टू रन। तो थर्ड वन सेंटेंस क्या है, would you like to walk, question mark, would you like to run. So there are two sentences are, in that two sentences we have to use और। तो क्या है यहाँ पे, would you like to run, आपको भागना पसंद है, would you like to walk और run। तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, ये देखो आंसर, would you like walk और run, question। हाँ, so would you like to walk or run, here we use। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया कैसे करना है। तो हमने क्या क्या यूज किया, and but and or, so these joining words we have to use here। okay, so students, today we will stop here. In the next lecture we have to see who am I। in that homework we have to complete it page number 55 and 56 in your grammar textbook। okay, in this chapter number 33 there are some curious problems, otherwise difficulties are there, you can call me, otherwise you can give me the message। okay students, so today we will stop here, thank you very much।